So welcome back after the diversion. Now, as you can see, the watt hour per kilometer has come down to 148, and there's a small village which we are going through right now, as you can see. So I have to keep the speed below 30 or 40 kilometers per hour. Speed breaker. See, the watt hour per kilometer has come down to 147. Watt hour per kilometer depends upon many factors: constant speed, the air resistance, the aerodynamics, the speed which you are cruising along. If you go above 70 or 80 kilometers per hour, there will be more wind resistance, and the watt hour per kilometer will take time coming down. Again, one more thing I have observed is, even if you don't feel the slope on the road, there are some places where there's a very slight slope on the road. You may not feel that slope driving your ICE car, I mean the internal combustion engine car, but that slope you can feel in your an electric vehicle. You can feel that the way your EV is cruising along without any efforts. आपको ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी आपकी गाड़ी जो भी स्पीड है, 60 है, 70 किलोमीटर्स की स्पीड है, वो मेंटेन करते हुए आराम से आगे बढ़ती रहती है. So you should what you say? You should be able to gauge that slope, and accordingly you must again loosen your right foot so as to keep the coasting, take the maximum benefit of the coasting. और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोस्टिंग करोगे तो आपकी वाट आवर पर किलोमीटर कम से कम होने वाली है. सो ये जो इफ़ेक्ट है ना, वो आपको आईसी इंजन में पता भी नहीं चलेगा, और आपने अब तक उस चीज़ पे ध्यान भी नहीं दिया होगा, क्योंकि वी जस्ट डोंट केयर इन एन आईसी इंजन. बट इन एन ईवी you should be able to recognize that slope and adjust your speed accordingly. तभी आपको ईवी से ज़्यादा माइलेज मिल सकती है. इवन अब हम जिस रोड पे जा रहे हैं ना, वो जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं उस डायरेक्शन में वाट आवर पर किलोमीटर इतने जल्दी कंट्रोल में नहीं आएगा. द मोमेंट वी टर्न बैक एंड स्टार्ट गोइंग बैक, आपको पता चलेगा कि वाट आवर पर किलोमीटर इतनी तेज़ी से नीचे आएगा और जो DTE है वो इंक्रीज़ होता जाएगा. I mean, I have observed this phenomenon when I used to do average testing for diesel vehicles on this road. So going towards Pandharpur will consume more fuel, and coming back on this road it takes less amount of fuel. So the same thing applies to the EV also. So हम लोग अभी जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो उस डायरेक्शन में जो वाट आवर पर किलोमीटर है वो इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होएगा. बट द मोमेंट वी टर्न बैक, जैसे ही हम लोग अपोजिट डायरेक्शन यानी जाने लगेंगे कि टुवर्ड्स मीरज, सो in that direction watt hour per kilometer will start coming down very fast. So once this overbridge ends, we'll turn back. अभी भी देखो, the watt hour per kilometer is around 150, वो कम नहीं हो रहा है. But the moment we start going back, it will come down. It will come down to maybe about even less than 105. Let's see.
use coasting to the max. That's the key. Coasting is the key. Regeneration is not the key. जितना कोस्टिंग आप करोगे उतनी अच्छी आपकी एवरेज आएगी और आपकी वैट और पर किलोमीटर कम रहेगी. So let's see where we can find a way cut in the newly constructed road to turn back. Yeah, it's visible now. Now the watt hour per kilometer is 147. The DT is 145. Just keep an eye on both these parameters. So the moment we turn back, so now I give the signal to turn. We'll make a U-turn and start going back towards Meerut. So just excuse me. So now we have taken U-turn, and just keep an eye on the DTE and watt hour per kilometer. The DTE is showing 144 and watt hour per kilometer is 144. What a coincidence. Let's see. Now again with the same driving speed and same driving style, the watt hour per kilometer will just fall. अभी आपकी स्पीड जब आपको मेंटेन करनी पड़ती है, यू कैन डू इट इन 2 ways. आप ऐसे दबा के रखो फिर भी उतनी स्पीड आएगी, और इवन इफ यू जस्ट कीप इट बिलो द फर्स्ट लाइन, अगेन यू विल मेंटेन द सेम स्पीड. सो जितनी कम इकोग्राफ में आपकी स्पीड मेंटेन होएगी, आपके वैट आवर पर किलोमीटर उतनी अच्छी आएगी और आपकी एवरेज भी उतनी अच्छी आएगी. So try not to go beyond the first line to maintain the speed. See, in spite of giving a few accelerations, the watt hour per kilometer has come down. 142 अभी दिखा रहा है. अभी एक बड़ा स्लोप आएगा, not बड़ा but a long one. See, I'm maintaining, I'm coasting. Well, we have a slight intrusion on the road, but yes, thankfully it is moved. A shepherd along with his lambs, goats on the road. This is India. Just keep an eye on the watt hour. It's coming down to 140. One more thing I would like to show you, that the air conditioning is on. It's on 26 degrees and the fan speed is on auto. But let me take it to the first speed. Anyway, it was on the first speed. So the air conditioning is on. Look at the watt hour. It's 138. वैट आवर पर किलोमीटर 2-3 पॉइंट गिरने के बाद आपका जो DT है वो इंक्रीज़ होने लगता है. सो द DT इज स्टिल नॉट इंक्रीजिंग, इट इज़ हॉवरिंग अराउंड 138. तो अभी जैसे ही 135, शायद 135 के नीचे आएगा वैट आवर पर किलोमीटर, वो DT बढ़ना शुरू हो जाएगा. अभी जो मैंने ब्रेक लगाया
the regeneration line goes to up to the second line. So इसको आप टू स्टेज रीजनरेशन बोल सकते हो. सो अभी दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा स्पीड लेके है ना, अभी स्पीड लिया मैंने. सो व्हेन आई रिलीज द एक्सेलेरेटर इट गोज टू द फर्स्ट लाइन. द मोमेंट आई टच द ब्रेक it goes to the second line. When I release the brake again it comes to the first line. So this is two stage regeneration. तो पहले जो फर्स्ट स्टेज जो रीजनरेशन है उसमें रीजनरेशन की फर्स्ट लाइन तक ही आपका रीजनरेशन रहेगा, थोड़ा सॉफ्ट रहेगा. बट द मोमेंट यू टच द ब्रेक, ऐसा नहीं है कि वो ब्रेक पैड वहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं व्हील्स पे. जस्ट आपकी जो पीछे वाली जो ब्रेक लाइट्स है वो अगर जल जाती है, सो द ECU टेक्स द सिग्नल दैट द ड्राइवर हैज प्रेस्ड द ब्रेक एंड इट गोज फॉर द सेकेंड स्टेज रीजनरेशन. देखिए वैट आवर पर किलोमीटर कितना कम हो रहा है. ड्राइविंग कंडीशंस में कुछ फ़र्क नहीं है, सेम रास्ता है, जस्ट वी आर ऑन द ऑपोजिट रोड. ट्रैफिक भी तकरीबन उतना ही है. द थिंग इज़ दैट, जो मैं बोल रहा था, रास्ते का स्लोप होता है, आपको दिखाई पड़े या ना पड़े वो थोड़ा सा रहता है. सो टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दैट, मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दैट. आपको फील आएगा कि कम एक्सेलेरेटर में भी गाड़ी उतनी भाग रही है. सो take maximum benefit of it, try to do coasting, and I'm sure the watt hour per kilometer will come down. See, now it is showing 127 and the DT is still at 138, hovering around 138. ना कम हुआ है ना बढ़ा है, तो अभी वो बढ़ना भी शुरू हो जाएगा. देखिए again coasting is the key my friends to drive an EV. coasting के बिना आप EV चलाओगे तो आपका एवरेज कम होने वाला है, आप ध्यान में रखिए. इवन आपको एक्सेलरेशन देना है फिर भी 1 या 2 लाइन तक ही सीमित कीजिए. और एक बार आपकी डिज़ायर्ड स्पीड आती है तो आपका जो राइट फुट है वो थोड़ा हल्का कीजिए, सो दैट द एनर्जी फ्लो इज़ ज़ीरो. देखिए कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है, ना बैटरी की तरफ ना बैटरी के मोटर की तरफ से. देखिए अभी DT बढ़ना शुरू हो गया. सेम रोड है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में. थोड़ी कम हो गई स्पीड बढ़ा ली, फिर हल्का किया दाया पैर, बढ़ा ली. चलो 60 के ऊपर भी आपको दिखाते हैं, 70 में भी कोस्ट आप कर सकते हो. देखिए ऐसा नहीं है कि आपको 60 पे ही रखनी है स्पीड. वो एक्सेलेरेटर में एक स्वीट स्पॉट है, दैट आपको खोजना है बस. दैट्स द की. अभी जो डाइवर्शन था वो आ गया है, सो इसलिए मैंने ब्रेक नहीं लगाया. ओनली ऑन रीजनरेशन आई हैव कंट्रोल्ड माई स्पीड and I'm negotiating the diversion right now at a very slow speed. I'm sorry for the vibration. मेरे पास कैमरे का स्टैंड नहीं है, so that's why I'm holding it in one hand and making the video.
जस्ट हैव ए लुक एट DT 143 हो गया और वैट आवर पर किलोमीटर 121। चलो आपको अबाउ 60 पे भी कैसे आप कोस्ट करते हो वो भी दिखाते हैं। चलो भाई ये क्रॉस 60, चलो 70 तक जाते हैं। चलो हम लोग 70 के आसपास कोस्ट कर रहे हैं अगेन। आप देख सकते हो DT में कुछ फ़र्क नहीं आएगा, इट विल कम डाउन एंड sorry, the DTA will increase and watt hour per kilometer will come down. Make maximum use of coasting. 145. बीच में एक गाड़ी को ओवरटेक करना था इसलिए थोड़ा स्पीड कम हो गया एंड एज ए स्पीड ब्रेकर अबाउट 100 मीटर्स फ्रॉम हियर, सो आई हैव रिड्यूस्ड माय स्पीड। फिर भी कोस्ट कर रहा हूँ। एज आई टोल्ड यू, आप कोस्टिंग में ही ये अंतर काट लो एज अगेंस्ट रीजनरेशन बस लास्ट के जो 50 मीटर्स रहते हैं उसके लिए आप रीजनरेशन पे छोड़ दो। सो मे बी अभी 50 मीटर है, सो आई हैव रिलीज द एक्सीलेटर और रीजनरेशन पे हमारा स्पीड कंट्रोल हो रहा है, पर शायद मैंने जल्दी छोड़ दिया एक्सीलेटर, तो इसलिए फिर से थोड़ा एक्सीलेटर देके मैं अभी स्पीड ब्रेकर पार कर रहा हूँ। देयर यू आर ऑन द स्पीड ब्रेकर, यू कैन फील इट। नाउ the watt hour per kilometer is 118 and the DT has gone to 146. One more speed breaker, छोड़ दिया एक्सीलेटर। परफेक्ट। अभी आप एक्सीलेट कर रहे हो तो डोंट गो बियॉन्ड सेकेंड लाइन। अगर आपको एवरेज चाहिए, अगर आपको गाड़ी का मज़ा लेना है तो बस द स्काई इज़ द लिमिट। ये गाड़ी आपको बहुत मज़े देगी एंड दिस अप्लाइज टू ऑल EVs। देयर अगेन आई एम मेंटेनिंग द कोस्टिंग इफेक्ट। The road is permitting me maximum of the speed. I can't go beyond 60 kilometers per hour, so that's why. हल्का सा एक्सेलरेशन दिया, फिर से कोस्टिंग, हल्का सा एक्सेलरेशन दिया, फिर से कोस्टिंग। ये आदत डाल दो आप EV चलाने में तो बस आपकी एवरेज आने ही वाली है। One more thing I would like to show you, my Trip B, which was reset during my last servicing,
सो 6,200 किलोमीटर्स प्लस का कुछ रनिंग हुआ है इसमें, और ओवरऑल आप DT देखोगे तो 100 के आसपास है। सो 100 DT तो बहुत बढ़िया है। इससे अच्छा DT बहुत कम लोगों का आता है, यानी दिस इज़ द परफेक्ट वे ऑफ ड्राइविंग एन EV। सो 6,200 का अगर आप ओवरऑल DT देखोगे तो 100 इज़ वेरी वेरी गुड स्कोर, आई वुड से। सो लेट्स कम बैक टू आवर स्कोर इस ट्रिप का, which is 114, and look at the DT it is 152। 138 तक नीचे आ गया था, जो कि अब 152 के पार हो गया। देखिए मेरा सिंगल पेडल ड्राइविंग। ना मैंने कभी ब्रेक लगाया है, बस मैं एक्सेलेटर पे ही गाड़ी कंट्रोल कर रहा हूँ। बिकॉज़ जैसे मैं ब्रेक लगाता हूँ तो जो रीजनरेशन का ग्राफ है वो 2 लाइन तक नीचे आ जाता है। Single pedal driving and coasting, that's the key for good average and low watt hour per kilometer। ये आदत डाल दो, आपको एवरेज देना ही चाहिए गाड़ी ने। और जो मैंने बोला, जो 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 रास्ते का स्लोप होता है, ग्रेडियंट यू कैन से, वो आप पहचानना सीख लो। जस्ट ट्राई एंड पिक अप द ग्रेडियंट ऑन द रोड, एंड द मोमेंट यू थिंक दैट देयर इज अ स्लाइट डाउन ग्रेडियंट ऑन द रोड, just loosen your right foot and again you can coast in the same speed with less energy and your watt hour per kilometer will decrease। अभी थोड़ा सा ब्रेक लगाना पड़ा मेरे को, आपने देखा होगा, you must have observed। तो फिर भी watt hour per kilometer, as I told you, it has come down to 110 from 120, oh sorry, it was 144 जहाँ पे हमने टर्न लिया था। सो वहाँ से लेके यहाँ तक it has come down to 110 and the DT is 160। DT खैर मोमेंटरी है। अभी ये जो हमने ड्राइव की है उसके मुताबिक वो DT है। इफ़ यू कंटिन्यू विद द सेम स्पीड, सेम रोड, सेम कंडीशंस, आप 160 किलोमीटर्स जा सकते हो। आगे जाके आपने स्पीड बढ़ाई या फिर ट्रैफिक ज़्यादा आया, सो द DT विल कम डाउन, या समझो इससे भी आपको ज़्यादा ग्रेडियंट मिल गया रोड पे, DT माइट इंक्रीज ऑल्सो। सो नाउ वी रीच आवर डेस्टिनेशन and I will have to stop the video, so I'll show you the final figures when we reach our destination। So that's it, we have reached our destination
and you can see the DT is 162, the watt hour per kilometer has come down to 110, and अपना जो total 21 kilometers का drive रहा है उसमें. So thank you for watching this video. If you have any questions, you can write down in the comments, and I will get back to you whenever I get your questions, and I will be very much happy to answer your questions. Thank you.